So trends in group one. Basically, you have to discuss and memorize about trends in group number one, group number seven, and group number eight. All right, with respect to your papers. So in group number one, there are metals, and these metals are called alkali metals. All right, so there here they are showing you all the metals that are in group number one and their properties. Uh, Group number one starts off with lithium, then sodium, then potassium, rubidium, cesium, and francium. Okay, so these are chemical symbols over here. This one is a chemical symbol, and this one at the top end corner, this is the proton number. The proton number lithium is 3, proton number of sodium is 11, potassium is 19, rubidium is 37, cesium is 55, and francium is 87. Okay, so what are their properties? Outer level electrons are only one. Girls, this is a property of all the atoms arranged in all the groups. आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा हुआ है, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या होता है? वी हैव सेंट्रल न्यूक्लियस, and the nucleus has protons and neutrons, and surrounding the nucleus are shells. All right, shells, or you can call them levels, or you can call them orbitals, whatever you like. So all the shells, they contain electrons which revolve around the nucleus. Now, in the very first or second lesson, we studied that there can be up to uh, 4 to 5 shells in a atom, depending on its proton number. ठीक है, अब अगर किसी का प्रोटॉन नंबर लिथियम का फॉर एग्जांपल 3 है, तो इसके नंबर ऑफ शेल्स इसके अकॉर्डिंगली होंगे, लेकिन 4 से 5 शेल्स तक हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बिकॉज देर आर सम metals which whose proton number is very huge. Okay, so that's why for example, it can go up to there are a total of 113 elements, तो 113 तक इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में हो सकते हैं। तो अब उनको अकोमोडेट करने के लिए उसके हिसाब से एटम का साइज बड़ा होता जाता है और उसमें शेल्स ऐड होते जाते हैं। सो in the very first shell, the electrons which the very first shell can hold, it can hold up to 2 electrons only. Okay, and I hope you are aware of their names: K, L, M, and N. These are the 4 names of these shells. The innermost is called K, and outermost is called N. So K, L, M, and N. All right. So I was saying that K, shell K, it can, or the shell or level or orbital, ये मैं कुछ भी कह सकती हूँ, वैसे मुझे शेल कहने की आदत है तो आई एम कॉलिंग इट शेल. The K shell, it can hold up to 2 electrons only. All right, it is its capacity. K सबसे पहला शेल होता है जो सबसे करीब होता है न्यूक्लियस के, ठीक है? तो उस शेल में, क्योंकि वो छोटा होता है, ठीक है, दैट्स वाई उसमें जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ओनली 2. ये मॉडल ऑफ एटम बनाने का ट्रिक है, ठीक है?
2 से ज़्यादा अगर आप रखेंगे तो आपके एटम का स्ट्रक्चर जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि हर एक शेल की एक स्पेसिफिक कैपेसिटी है जितने इलेक्ट्रॉन्स वो शेल होल्ड कर सकता है। के शेल जो सबसे करीब है, जो सबसे इनर मोस्ट शेल है, जो विच इज द वेरी फर्स्ट शेल ऑफ द एटम, इट कैन होल्ड अप टू ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आता है एल एल शेल, ऑलराइट, सेकंड शेल। The second shell has the capacity of holding up to 8 electrons. 8 electrons ये hold कर सकता है, ठीक है। Third shell then it also has the capacity to hold up to 8 electrons, ठीक है। थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम। अगर किसी का प्रोटॉन नंबर ज्यादा है, फॉर एग्जांपल 37 है, ठीक है, या 19 है, पोटेशियम का कर लें, तो सबसे पहले आप एक शेल बनाएंगे, उसमें आप 2 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, ठीक है। पीछे 2 इलेक्ट्रॉन जब आप उसमें अकोमोडेट कर देंगे, पीछे 17 बच जाएंगे। फिर आप एक और शेल बनाएंगे, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स आपने डाल दिए, 2 पहले वाले में डाल दिए थे, 10 हो गए, 9 बच गए। फिर आप एक और शेल बनाएंगे, ठीक है, उसमें आप 8 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर भी पीछे 19 में एक बच जाता है, फिर आप एक और शेल बनाएंगे, वो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो आप सबसे बाहर वाले शेल के अंदर डालेंगे, ठीक है। इस तरह से एटम का स्ट्रक्चर जो है उसको बनाया जाता है। ऑलराइट, अच्छा, अब ये खैर बात मैंने इसलिए की थी बिकॉज जितने भी ग्रुप्स आपके पास होते हैं, सब ग्रुप्स के अंदर उसके नंबर के अकॉर्डिंगली उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब ग्रुप नंबर 1, अब इसका जो भी आउटर मोस्ट है, लिथियम का आउटर मोस्ट सेकंड शेल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आगे, एक बच गया क्योंकि इसका प्रोटॉन नंबर 3 है, तो जो दूसरा शेल होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसी तरह शेल्स का नंबर इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे आप एक ग्रुप में नीचे जाते जाएंगे। लेकिन तमाम एलिमेंट्स के जब आप स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे तो आप ये एक इसमें पैटर्न नोट करेंगे कि जितने भी आपने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उसमें जो जिस उस स्पेसिफिक एलिमेंट का सबसे आउटर मोस्ट शेल आपने बनाया उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ये इसका अरेंजमेंट इन्होंने इस तरीके से किया हुआ है। इसी तरह ग्रुप नंबर 2 के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रुप नंबर 3 में आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर, सब न्यूक्लियस से फादेस्ट, न्यूक्लियस से सबसे दूर होता है आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट का मतलब इनर मोस्ट नहीं है, जो जैसे जैसे आप अंदर जाते जा रहे हैं, न्यूक्लियस के करीब जाते जा रहे हैं, वो इनर साइड पर आप जा रहे हैं एटम के। जितना आप न्यूक्लियस से बाहर जाते जा रहे हैं उतना आप आउटर जाते जा रहे हैं एटम के, ठीक है, बाहर वाले हिस्से पे। तो आउटर मोस्ट का मतलब है जो सबसे बाहर शेल आप बना रहे हैं, जो न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है, ठीक है। अब वो चाहे के हो, एल हो, एम हो, एन हो, ठीक है, इट डजेंट मैटर। अच्छा, मैंने आपको सॉरी एक चीज मिस हो गई। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, एल में 8 होते हैं, एम में 8 होते हैं, और एन में 16 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। उसकी कैपेसिटी है कि इट कैन होल्ड अप टू 16 इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, सो आप जितने शेल्स बीच में ऐड करते जाएं बेशक। अब जैसे लिथियम है, लिथियम में सिर्फ 2 शेल्स हैं, ठीक है, लेकिन सोडियम है, सोडियम में 3 शेल्स हैं। पोटेशियम है, पोटेशियम में 4 शेल्स हैं। रुबिडियम में इसी तरह 5 होंगे। शेल का नंबर इंक्रीज करता जाएगा, एटम का साइज भी बड़ा होता जाएगा। ये इसके अंदर ट्रेंड्स हैं।
जो एक डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं। अब क्या क्या इंक्रीज हो रहा है कि एक चीज तो ये जो सब में कॉमन है वो ये है कि आउटर लेवल में इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो 1 है। दिस इज अ सिमिलैरिटी दैट इन all the electrons have one, all the elements, they have only one electron in their outermost shell in group number 1. Then reactivity, how do they, how are they responsive towards other elements or other metals? They are reactive, and as you will go down the group from lithium till francium, it will become more reactive. All right, the reactivity increases as you go down the group. All right, other shared properties are of alkali metals that they are soft, they are silvery, they are shiny, they have low density. Because they are metals, so they will be good conductors of heat and electricity. All right, and these are the names of its all the members. Is it clear to everyone? शेल्स का अरेंजमेंट समझ आया सबको? मुझे मैसेज नहीं, मैम सॉरी, पढ़ पा रही हूँ बिकॉज मेरी स्क्रीन पे स्लाइड्स खुली हुई हैं। सो आप लोग बोल देंगे तो मैं, इट वुड बी इजियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. All right, so that was about all about group number 1. Okay, so what are the properties and trends of group number 1? Uh, these are actually some objectives of it. Equations, lithium. If we have to make equations with lithium, then what is being formed here? They have just added a simple equation of lithium. Lithium is in the form of solid, and when it reacts with water, तो हाइड्रोजन गैस बनती है। और क्या बनता है? अब ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक तो हाइड्रोजन गैस बनती है और उस मेटल का सॉल्ट बनता है। ठीक है ना? तो हाइड्रोजन गैस बन गई और वाटर में क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन रह गया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, तो आपके पास जो सॉल्ट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी लिथियम ऑक्साइड। ऑलराइट, सी, lithium oxide, because there was hydrogen has evolved, so आपके पास पीछे ऑक्सीजन रह गया। अच्छा जी, देन इन्होंने स्पेसिफिकली रुबीडियम की और डिफरेंट मेटल्स की डाली हुई हैं प्रॉपर्टीज। These are the properties of rubidium. What are its physical properties? It is very soft, it has low melting point, and it is shiny when cut. When you will cut again, when you are going to cut it into pieces, then you will see that it is shiny. Alright, reactivity with water. It is very vigorous. Vigorous means बहुत जल्दी से react हो जाता है ये water के साथ. Alright, then products formed: hydrogen gas and rubidium hydroxide. When it reacts with water, it forms hydrogen gas
and rubidium hydroxide, and this is its word equation. When rubidium is reacting with water, it's forming hydrogen gas and rubidium hydroxide, and this is its symbolic equation, means an equation in which we are only using the symbols. Okay, so patterns in the periodic table, its reactivity increases, melting and boiling points decreases. Sorry. So its melting point and its boiling point, it decreases. जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे, as you go down the group, the melting and boiling point, it is decreasing. Means lithium is going to have the highest melting and boiling point, while francium is going to have the lowest melting and boiling point. Okay, and its reactivity is increasing. The reactivity increase हो ही इस वजह से रही है, ठीक है, क्योंकि उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है. अगर फॉर एग्जांपल फ्रेंसियम जो है ये मेल्ट हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, वैसे ऐसे होता नहीं है, तो क्या होगा, आप रूम टेम्परेचर ही अगर इसे प्रोवाइड करेंगे और इसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे, ये फौरन रिएक्ट हो जाएगा, राइट? उसको आपको हीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, साइज ऑफ द एटम इज इंक्रीजिंग. When you go down the group, the size of the atom increases, its reactivity increases, but its melting and boiling point, it decreases. I think it's something. Okay. This is the last slide now of this alkali metals. They have, now you can see this, they have made this structure of atom over here, and they are saying that इसकी, अब ये बता रहे हैं यहाँ पे कि इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों है. ठीक है, अब गर्ल्स देखें, मेरी बात सुने, इसकी जो कैपेसिटी होती है ना हर शेल की, वो कैपेसिटी बेसिकली इसको एक एटम को स्टेबल स्ट्रक्चर देने के लिए होती है. जब तक जिस शेल की कैपेसिटी फुलफिल हुई हुई होती है, कंप्लीट हुई हुई होती है, वो रिएक्टिव नहीं होता, क्योंकि उसकी कैपेसिटी तो फुल है. रिएक्टिव कब होता है? रिएक्टिविटी होती क्या है? रिएक्टिविटी ये है कि एक एलिमेंट है या एक एटम है जिसके अंदर कैपेसिटी है किसी चीज के साथ रिएक्ट करने की. अब उसमें कैपेसिटी कैसे होती है? उसके अंदर कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पे, अगर हम जाके देखें तो. अब उसके अंदर, अगर उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कैपेसिटी होगी कि वो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे, तो वो किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, जब दो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, बॉन्डिंग करते हुए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करते हैं आपस में. ठीक है, उस एक्सचेंज के रिजल्ट में मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं. समझ आ रही है आपको बात? अब alkali metals have one too many electrons. अच्छा, अब इसमें गर्ल्स, जो एटम्स है ना, इनके पास दो ऑप्शंस होते हैं. ठीक है, या तो ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं किसी दूसरे के साथ अपनी कैपेसिटी को फुलफिल करने के लिए. अब देखो, इसमें जो सेंटर में है ना, इसकी कैपेसिटी फुलफिल हुई है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, और इसकी कैपेसिटी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की ही थी. ठीक है, तो ये शेल इंतहाई स्टेबल है, ये चेंज नहीं होगा, इधर कोई चेंजिंग नहीं आएगी. देन उसके बाद सेकंड शेल पे आ जाएं. अब सेकंड शेल के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये लिथियम का एटम इन्होंने बनाया हुआ है.
सॉरी नॉट लिथियम, पोटेशियम का, बल्कि सोडियम का, सॉरी पोटेशियम का भी नहीं। अच्छा जी, तो सेकंड शेल में भी क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये स्टेबल है, ठीक है। लेकिन जो सबसे बाहर शेल है, अब उधर देखें, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब क्या होगा, एटम के पास दो ऑप्शंस है, या तो वो अपना ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दे अपनी। अब इसने इस ये आउटर मोस्ट शेल में, थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8, 8 की कैपेसिटी है। अब या ये एक दे दे या 7 बोरो करे, तब ये स्टेबल होगा। अब यू सी 7 को, 7 इलेक्ट्रॉन्स को किसी एटम से बोरो करना मुश्किल है, मुश्किल है ना। 7 इलेक्ट्रॉन तो वो किसी एटम से बोरो नहीं कर सकता, लेकिन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को देना आसान है, ठीक है। एक एटम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स देना आसान होता है, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन्स देना मुश्किल होता है। कोई किसी की आउटर मोस्ट शेल में अगर 7 होते ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो फिर ये क्या करता है एटम कि इसके पास सिर्फ एक ऑप्शन हो जाती है, बच जाती है कि ये अपने ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी दूसरे एटम को देके उसके साथ मॉलिक्यूल बना ले। जब ये उसको दे देगा तो इसका इनर इनर ये दोनों शेल्स ऑलरेडी फुलफिल्ड है, ये एक स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। आपको समझ आ रही है गर्ल्स या नहीं आई? यस आ गई है। ओके, ठीक है। इसी तरह अब ये फर्स्ट है, तो इसी तरह जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या होता है, खैर वो भी आगे जाएंगे तो हम देखेंगे क्या होता है। All right, so these are all the trends in group number 1. These were all the trends in group number 1. Now, trends in group number 7. Let's study about these. Go through कर रहे हैं हम, वैसे ही हमने पढ़ा हुआ पहले। All right, so trends in group number 17, सॉरी 7 इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि बीच में जो ट्रांजिशन मेटल्स वाले ग्रुप्स हैं उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स करके मतलब उनके ग्रुप्स को हम कंसिडर नहीं करते, तो ग्रुप्स हम जो बड़े बड़े लंबे लंबे ग्रुप्स हैं उन्हें कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई इन्होंने ग्रुप लिखा हुआ है। वैसे नाउ in the latest language this group is known as group number 17, second last group, and it is about halogens. Okay, so this is it, the group which is I am talking about, halogens. And these are different halogens: fluorine, chlorine, bromine, iodine, and Antine, I think it is aspirin. All right, so this is this one, this group number 17. Okay, this is the group which is halogens, and all the halogens are non-metals, and usually they are present in the form of अच्छा, हेलोजेंस की एक क्वालिटी है which is different from all others. इधर जितने भी मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं ना, या आपको वो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे या आपको वो गैस फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन सारे ग्रुप में एक ही पैटर्न फॉलो होगा। हेलोजेंस की प्रॉपर्टी ये है, एक जो हेलोजेंस को बाकियों से मुख्तलिफ करती है
वो ये है कि जैसे जैसे यू विल गो डाउन द ग्रुप, ये इसकी स्टेट्स चेंज होती जाएगी। जैसे कि फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस होती हैं, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, आयोडीन सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर, इसी तरह एस्टीन सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, first two elements are gases, then one is liquid, then last three are solids. All right, so now again लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे भी ग्रुप नंबर 1 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे, चाहे वो बेरिलियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, उसका साइज बढ़ता जाएगा एटम का। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप, उसके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होता है जितने उस ग्रुप का जो नंबर होता है। ठीक है, जैसे ग्रुप नंबर 1 में आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर 2 में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह ग्रुप नंबर 3 में 3 है, 4 में 4 है। ठीक है, इसी तरह ग्रुप नंबर 17 में आउटर मोस्ट शेल में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैंने आपको बताया था एम शेल के अंदर, एम शेल की कैपेसिटी है टू होल्ड अप टू 18 इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट, सो इसके अंदर अब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन कम है। देखें, 7 इसलिए इसे कहा जाता है एक्चुअली क्योंकि अब ये क्लोरीन है, इसमें तीन शेल्स हैं। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ग्रुप नंबर 7, बिकॉज ये अलग, अगर हम इलेक्ट्रॉन के पैटर्न के हिसाब से देखें तो इसमें जो हैलोजेंस है इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या जिनका आउटर मोस्ट शेल एन होता है उसमें 17 भी होते हैं। खैर, दैट डिपेंड्स। सो क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब वही बात आ गई जो जैसे सोडियम की आई थी कि अब ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, ये स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम है, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है और इसमें उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन एक कम है। तो यूजुअली क्या होता है कि जितने भी हैलोजेंस होते हैं ये ग्रुप नंबर 1 के मेटल्स के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन अपने पास अट्रैक्ट करके और मॉलिक्यूल बना लेते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपना वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा? सोडियम की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगी, क्लोरीन की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगी। लेकिन जब ये काम होगा, जब ये शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, उसके बाद ये दोनों एटम्स अलग अलग नहीं रह सकते, फिर ये ज्वाइन हो जाएंगे, ये एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएंगे, बॉन्डिंग हो जाएगी इनके दरमियान, फिर ये एक साथ ही रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस चीज को मॉलिक्यूल कहते हैं। जब दो इलेक्ट्रॉन्स, दो एटम्स के दरमियान में, दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के दरमियान में बॉन्डिंग हो जाती है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या ड्यू टू ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एटम्स जो हैं वो फिर एटम्स की आइडेंटिटी उनकी खत्म हो जाती है और वो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, अब इसी तरह देखें फ्लोरीन के आउटर पोर्शन में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब फ्लोरीन भी
ग्रुप नंबर 1 के साथ ही, क्योंकि उसका रीजन ये है सिर्फ ग्रुप नंबर 1 के साथ बनाने का कि अगर हैलोजेंस ग्रुप नंबर 2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो फिर वही होगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। बेसिक पर्पस क्या है शेयरिंग का या बॉन्डिंग का? स्टेबिलिटी। ठीक है, एक एटम ने, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ, अभी हम आगे पढ़ेंगे देखेंगे कि नोबल गैसेस आर द गैसेस जिनकी फुलफिल हुई हुई होती है सारी कैपेसिटी और जो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है उनके एटम्स होते हैं और वो बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होती। उसके अलावा जितने भी ये हमारे पास बीच में एलिमेंट्स आते हैं वो तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी कैपेसिटी, इस चीज को हम कहते हैं कैपेसिटी को, इस कैपेसिटी को, ये जो शेयरिंग की कैपेसिटी होती है इसका साइंटिफिक लैंग्वेज में एक स्पेसिफिक नेम है, दैट इज वेलेंसी, VALENCY। ठीक है, this is a scientific term for this capacity, that how many electrons an atom is supposed to hold and how can it, how उसकी और कितनी कैपेसिटी और मजीद लेने की, बोरो करने की। ठीक है, बेसिकली कैपेसिटी बोरो करने की होती है या देने की। ठीक है, तो sorry. All right, so what did you find out? What is the order of reactivity? In halogens, reactivity increases from bottom to top. एस्टेनीन सबसे कम रिएक्टिव है रिएक्टिविटी में, एस्टेनीन की रिएक्टिविटी सबसे कम है, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। अब हमने ग्रुप नंबर 1 में देखा था कि जो सबसे ऊपर था उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कम थी और जैसे हम नीचे जाते गए थे उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा थी। यहाँ पर उलट हिसाब है कि यहाँ पे जो सबसे ऊपर है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है और जो सबसे नीचे उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। साइज increases as you go down the group. Okay, so these are two important points. Now the halogens, they want to grab an electron because there in their outermost shell there are 7 electrons, so it is easier for them to get an electron from others in spite of donating all their 7. All right, but it has to get past all the electrons in the way, मतलब जो उसके, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन बोरो तो करना है बट वो जो इलेक्ट्रॉन बोरो होगा उसको सेट होना पड़ेगा क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, so it's all about getting close to the nucleus. Fluorine has 9 electrons in the way of its nucleus. Chlorine has 17, bromine has 35, iodine has 53. अब इसका क्या मतलब है? देखो गर्ल्स, टाइम होने वाला है। अच्छा देखें गर्ल्स, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना काम किसका है? न्यूक्लियस का। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है। न्यूक्लियस अट्रैक्ट करके रखता है इलेक्ट्रॉन्स को,